Yes, so today is the second day of our basic, and that's what we are going to have here, ABCD once again. Yesterday I started with our basic ABCD, basic grammar. Now today I'm going to ask you some questions, then we're going to go ahead for the further session. Now second thing is what, yesterday I asked you some questions. How many alphabets do we have in English? One. One. Correct. We have one alphabet. Okay. A to Z, it is what? One alphabet. What is the origin of English language? Maybe. Turkey. Correct. It is what? Turkey. And what is the origin of ABC? Greece. Greece is the origin of ABCD. Yeah, Okay. Greece. And what is the origin of English language? Turkey. Yesterday I explained you with the proof all these things in detail, right? So what is the proof of English ABCD? Greece. And what is the proof of, sorry, what is the origin of English? Spoken English, that's what? Turkey. The first country to speak English in the whole world, it was what? Turkey. Point number one. Second thing, ABCD was originated in Greece. That's what? Alpha, beta, gamma, delta, kappa, lambda, omega, sigma, theta. All these, the letters came from Greece in English. Okay. Now what people they say, English alphabets, they are absolutely wrong. Why? Because it is what? English alphabet, not alphabets. Why? Because A to Z, it is what? One set, one group. A to Z is one set, one group, and we are going to call it English One alphabet, group. not alphabets. Now let me tell you one more thing. For example, this is my finger, correct? And these are what? Fingers. So one finger and two fingers. Same case, one eye and two eyes. 1 ear, 2 ears. Same case, English alphabet. Why? Because it is one set, one group. We don't call it English alphabets. Why? Because it is only one set, one group. A to Z is one set, one group. That's why we call it English alphabet, not alphabets. Okay, point number one. We call it English alphabet, not alphabets. Second thing is there. Now ABCD. ABCD, the origin of ABCD is what? Greece, and English origin is what? Turkey. Second thing, it is what? English alphabet, not alphabets. First mistake which Indian commit in their mistakes. Now, how many letters do we have in English? A to Z, how many letters do we have? 26. Correct. We have 26 letters in English 26. alphabet. Okay. One alphabet is there, A to Z, one alphabet, and we have 26 letters. How many vowels do we have? 5. Correct. Five. 5 vowels. And please, all of you, please answer me. Don't sit with your shutting your mouth, oh, sorry, shutting your mouth, your mics, and your cameras. Okay. Just please answer me, because the moment when we are going to have two-way conversation, two-way communication, it will be really amazing class. So I want your response after I ask you the questions or not. So how many vowels do we have in English? 5 vowels we have. Why 5 vowels do we have? Five. Why only 5 vowels only? Why B is not a vowel? Due to some sound. Correct. Actually, when we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. Yesterday, I told you that when we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. For example, A, E, I, O, U. So when we utter the sound of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. For example, A, E, I, O, U. Nothing happened to my finger. But the moment when I utter the sound of consonants, what do you mean by consonants? What is consonant? Rest of AIU. Correct. Rest of Other than. A, E, I, O, U. Means what? The other letters except vowels are called consonants. Except vowels, all the other letters are called consonants. For example, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. All these are what? Consonants. So when we utter the sound of consonants, our breath gets blocked fully or partially. For example, B. Until and unless I release my lips, I couldn't pronounce B. Yes or no? So this is what exactly, when we utter the sound Yes. of vowels, our breath doesn't get blocked. For example, L. Breath is getting blocked partially. H, completely blocked. F, completely blocked. R, partially blocked. W, so W, completely blocked. So when we utter the sound Block. of vowels, our breath doesn't get blocked. It comes easily out. For example, A, E,
I, O, you should know all these things, okay? Because this is what basic. On behalf of this basic, I'm going to show you further in advanced English and intermediate English as well. Second thing is what? Now we have five vowels in English, and without vowels we can't make even a single word in English. Can we make a single word in English without vowels? No, we can't make even a single word in English without vowels. All right. For example, hair, AI vowel is there. Screen, E vowel is there. Speaker, EA vowel is there. Bottle, OE vowel is there. In the word bottle, OE vowel is there. Yes or no? Every word is containing vowels in English, but some of the people will say that there are some words in English which are not containing vowels. For example, fly, no vowel. My, cry, buy, shy, sky, no vowels. No, actually vowel is not there, but vowel sound is existing there. What's that? I, cry, I, fly, I, I, my, I, shy, I, buy, I, sky, I, try, I. In these words, try, my, fly, shy, I is what? The vowel sound. Means what? Without vowel sounds, we can't make even a single word. If you see, can we use the, can you read this word? No, it's not a word actually. Why? Because there are no vowels, and without vowels, the sound is not getting made. साउंड ही नहीं बन रहा है उसका, तो हम लोग वॉवल्स कहाँ से बोलेंगे, मतलब उसको वर्ड कहाँ से बोलेंगे. सेम केस PQR, can we read it? No, because there is no vowel, and without vowels we can't make even a single word in English. All right, so vowels are very important. Next heading is what? Consonants in English. Now what do you mean by consonants? Except vowels, all the other letters are consonants. Okay, vowels को छोड़कर बाकी जितने भी letters है वो सब consonants है. Yesterday we yes. have seen this one. Now, weak vowels. Yesterday we have seen another topic, and that's what weak vowels. How many weak vowels do we have in English? WHY 3. Correct. There are three weak vowels which are blue. For example, H, W, and Y. And I believe WY. all of you have downloaded this dictionary from Play Store, LNP, and you have Yes, sir. practiced at home for the Yes. of ABCD. Okay, all of you have to download this dictionary from Play Store and have to practice at home. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. It was what before? Yal, yum, yan. I want you to change up yourself, okay? Because if you are learning good English, you should be going in an MNC company. Are you getting the point? If you want to go to a local company, you can just be with your local English. Yal, yum, yan, 5-3. It is not 5, it is what 5. Even people don't know how to pronounce the words properly. People don't know how to pronounce the numbers properly. Let me tell you one more thing. Our teachers are pronouncing the words very thoroughly, so pathetic way. Sorry to say this. Now let me tell you one more thing. Let me show you the example. Now, what is this? 12th, One by one repeat करना है. Okay, Jay, repeat. 12. Wrong. Shaima, 12th, wrong. Supriya, 12th, repeat once again. 12th, Wrong. Mehek, 12th, wrong. Actually, this is what? 12th. It is not 12th. People are calling it 12th, but it is absolutely wrong. Ramiz, Yeah, hi. yeah, hello. Can you just repeat this? What is this? Ramiz. Are Ramiz, are you mute? Yeah, Yeah, yeah. What is this? 12th. Network issues. ये mistake है. Now let me tell you. अब आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं 12th. Listen to me carefully now. See in the camera. आप लोग बोल रहे हैं 12th. Wrong. It is not 12th. It is 12th. 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 It is not 12th. Let me show you with you. अब आप लोग अगर बोलेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? Let me share with you directly from the dictionary. 12th का स्पेलिंग बोलो. गलत. अगर आप डाल रहे हैं TWELTH आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे डिक्शनरी में भी नहीं है. हम लोगों को जो पढ़ाया है बचपन से वो रॉन्ग है. इट इज व्हाट 12th. आई सिंग देयर F. डिक्शनरी खुद सामने आके बोल रहा है, Yes. मैंने नहीं बोला कुछ भी.
डिक्शनरी बता रहा हूँ. Directly means what? The proof is there. People are calling 12th. Teachers are calling 12th. Principals are calling 12th. But it is not 12th. It is what? 12th. 12th. One mistake can cause you danger damage. Remember this. हम लोग बोलते थे 12th wrong. It is what? 12th. मैंने आप लोग को एक एग्जांपल और दिया था डेमो के अंदर. Suppose your boss is calling you from their America. Okay? अमेरिका से आपका बॉस आपको कॉल कर रहा है. Hello Ramiz, I'm coming on 20th. Please come and pick me up from the airport. I'm coming on 20th. So what is this? 20th. I did not say 28th. 28 is different and 20th is different. 20th means what? 19th, 20th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th, and this is what? 28th. So 20th and 28th both are really very different. So one single mistake, आपके बॉस ने बोला, hello my dear, I'm coming on 20th to India, please come and pick me up from the airport. और अपन पहुंचे कब? अपन कधी गेलो 28 ला. हेलो सर आपण आलो नाही अजून. अरे गाडवा, 28. क्या बोलेगा वो? क्या घर पे भी मर उधर जाके, मैं 8 दिन पहले ही आ गया मेरे को. तो बुलाया उसने 20 तारीख को, अपन पहुंचे उधर 28 तारीख को. लफड़ा हो जाएगा ना पूरा. So this is what exactly we don't know even numbers in English. Sorry to say this. So the pronunciation matters a lot, and the pronunciation will be made by Ramesh. Pronunciation will be made by Miss. Pronunciation will be made by what? Jay. Pronunciation will be made by Miss Shaima. Pronunciation will be made by vowels. Yes or no? Practice. Vowels. Vowels से बनाया जाएगा ना. अभी यहाँ पर भाई pronunciation बनेगा क्या इसका? इसको कैसे पढ़ेंगे? कटपा जड कैसे पढ़ेंगे? कटप्पा विटप्पा क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे भाई इसको? अभी कुछ पढ़ सकते हैं? कटपा जड बिटपा जड ऐसे कुछ है क्या? कुछ ऐसा अपने कुछ दिल से लगा के? नहीं, वहां पे वॉवल्स ही नहीं है, उसको पढ़ेंगे ही नहीं हम लोग. Why? Because vowels तो साउंड बनाते हैं, और जो भी साउंड बनाने वाली चीज ही नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे क्या उसको? Means what? It is absolutely useless. So that you should know vowels well. Without vowels, we can't make even a single sound in English. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes. Yes. Good. Let's go for the next one. So yesterday we have seen already weak vowels in English. So how many weak vowels do we have in English? 3. And what are those? Hey. WHY. Correct. W, H, and Y. We can just call it HWY or WHY. Both are right. Okay. So we have 3 weak vowels in English: W, H, and Y. Why weak vowels are weak vowels? Yes. Sometimes it sound like vowels. Correct. Sometimes WHY act like main vowels. Listen up. Yes. You don't have to write Miss Supriya. Have a look here. You'll get this document directly with you. Okay. At the end of the class, just send me your mail. You'll get this document with you. So if you see here, sometimes WHY, they act like main vowels. For example, how many weak vowels do we have? 3 weak vowels. What are those? W, H, and Y. Sometimes WHY act like main vowels. What are those main vowels? A, E, I, O, U. Now I have given them some names. For example, main vowels, I've given the name father. Weak vowels, I've given the name son. Now whose acting does the son does? ये सन किसकी एक्टिंग करेगा? अपने बाप की एक्टिंग करेगा कि बाजू वाले की एक्टिंग करेगा? Father की. Obviously फादर की एक्टिंग करे, बाजू वाले की करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं. अब इसको बाप जो उसकी एक्टिंग करेगा ना, बाजू वाले की एक्टिंग थोड़ी करेगा. It is the same. If you see WHY, they act like main vowels. For example, H. What is the real sound of H? Her. For example, her heart, her home, her horse, etc. Yes or no? H का sound क्या आता है? Her. But here, if you see Yes. here, our. Do we say our? No. Here the sound of H is what? No. Our or R. Our or R. Our or R. The sound is what? A. And what is A sound? A. Vowel का sound आ रहा है. H किसका sound निकाल रहा है वहां पर? A. Vowel का. और कौन है? A. Father. So H will be weak vowel, that is son. Yes or no? I get the points. Yes. Same case. For example, honest. Honest. Do we say honest? No. H is like O. Honest. No. Honest. Honest. H is like acting O. like. H is what? Weak vowel. O is what? Vowel. H is acting like main vowel. So main vowel कौन है? Father. Vowel H will be weak vowel son. Okay. So H is acting like main vowel. That's why weak vowel H is there. Next,
W. W का रियल साउंड क्या है? वो साउंड आता है W का रियल साउंड. फॉर एग्जाम्पल watch, why, well, woman, correct? But here in these examples, W is acting like O. For example, awesome. Do we say awesome? No. We No. say awesome. 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 W is acting like O. Awesome. What is O? What is O? O is a Vowel. vowel. So W weak vowel. Yes or no? W is acting like O. For example, Yes. awful. In this word, we don't say awayful. We say awful. Awful. W is acting like O. And what is O? O is a vowel. So W will be weak vowel. O is what? Father. W will be son. Simple. Next one, Y. Now the last one is what? Y. Y is also sometimes acting like main vowels. That's what? A, E, I, O, U. For example, if you see here, cycle, 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 sigh, I sound is there. Means what? W is acting like I. And what is I? What is I? I is a vowel. So W will be weak vowel. Y will be weak vowel. I is vowel. Y will be weak vowel. I is father. So Y will be son. Same case, cylinder. In the word cylinder, 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 cylinder. C. Y is acting like E. And what is E? E is the vowel. So Y will be weak vowel. Yes or no? Have you got the answer? So in the word Yes. cylinder, Y is acting like E and E is a vowel. So Y will be absolutely weak vowel. Is that clear to all of you? Any doubts? Please respond me. Any doubts? Any No. doubts? No. So कल हम लोगों ने यहाँ तक के किया था. Let me continue today the session. Okay. Now for example, अब यहाँ पर एक question है मेरा. What shall I put here? I waited for you a year or an year? An year. A year or an year? क्या आना चाहिए? An. नको. अरे यहाँ पर A आएगा मेरे भाई. यहाँ पे A आएगा, N नहीं आएगा. अगर N अगर लिखा मैंने तो गलत हो जाएगा. देखो दिख रहा है वहाँ पर अंडरलाइन दिखा रहा है वो. Why? Because a year. मैंने ऐसे बोला कि मैं आपके लिए एक कान से रुका हुआ था. नहीं, मैंने बोला मैं आपके लिए एक साल से रुका हुआ था. कान से थोड़ी ज्यादा. A year. For a year. I waited for a year. I waited for you a year, not an year. क्योंकि वहां पे साउंड आ रहा है यर. I waited for you a year. का साउंड आ रहा है. वहाँ पे ई का भी साउंड आ रहा है ना. पहले साउंड किसका आ रहा है वहां पे? अ यर. य का साउंड आ रहा है ना. यर. एंड y is what? Y is consonant. Yes or no? कॉन्सोनेंट में y है कि नहीं? y कॉन्सोनेंट है. Yes or no? एंड कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं. मैं आपको एक छोटा चटका देना चाहता हूँ. चटका देता हूँ मैं आप लोगों को. थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है. ओके. हैव अ लुक ऑल ऑफ यू. देखते हैं हम लोगों को आज कितना दिमाग चल रहा है, कितना हम लोग को आता है. लेट मी शेयर विथ यू समथिंग. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पे मिस्टर रमीज है. मिस्टर रमीज ने क्या किया है? एक सेक्रेटरी उनको मिली और उन्होंने क्या उनको मैसेज किया है कि नहीं? सेक्रेटरी को बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे आकर क्या किया? उन्होंने एक ईमेल किया. सेक्रेटरी को बोला आई सेंट यू डैश SMS yesterday. Please fill the gap with A or N. Suitable article. जल्दी. N. नहीं, झगड़े नहीं करना. How many people are saying A and how many people are saying N? Yes, Mahek, what do you say? N. Okay, Mahek is saying N. One word. Ramiz? N. Okay, N. Shaima? N. N. Supriya? A. A. Jay? Jay? Gone. Okay, by the way, पहली बार देख रहा हूँ मैं पार्टी जीत रही है. Very nice. Actually, the answer is what? N. I sent you an SMS. Why N is there? Now, बचपन से भी हम लोगों ने एक चीज सीखा. हम लोगों को बचपन से अपने टीचर ने एक बात बोला था. क्या? चलो रे बच्चों पढ़ो. Whenever we are going to put there A, कब बोलेंगे A? For example, a pot, a man, a car, a bed. Yes or no?
a cylinder, etc. Correct? We are using A for consonants. अपन ने बचपन में पढ़ा था, right? पढ़ा था कि नहीं? Yes. Yes, sir. और एन कब यूज करते हैं हम लोग? An apple. AEIOU ऐसे सेंटेंस अगर फर्स्ट Correct. फर्स्ट An लेटर egg. Very good girl. An ice cream. An umbrella. Yes or no? Yes. An ice cream. बचा क्या है? An orange. O. है क्या नहीं? O AEIOU. We are using the N. But ये अपने बचपन का रूल था तो बचपन में छोड़ देने का. वो स्कूल चली गई 17 नंबर स्कूल, 13 नंबर स्कूल, उठाने वाली स्कूल, वो स्कूल का था, स्कूल में था, अच्छा लग रहा था, बट ऐसा हर जगह चलता नहीं है. Actually the teacher must say there that you are using your N for not vowels but for vowel sounds. We are going to use there N for vowel sounds and we are using A for consonant sounds. समझा? ये आपको समझ होना चाहिए. Let me tell you one more thing. For example, I sent you an SMS. इसको मैं बोल रहा हूँ कि समस. मैं इसको बोल रहा हूँ I sent you. No, I'm saying I sent you an SMS. SMS. What is the sound? S S S A. What is sound there? A sound. And what is A? A. Vowel. 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 Vowel के लिए क्या लगाएंगे फिर? And. आया कि नहीं? है कि नहीं जादू? है कि नहीं जादू? जादू नहीं है, एक्चुअली रियल रूल है वो. तो पता ही नहीं है. Let me tell you one more thing. For example, he is dash HOD of our college. Yes, fill the gap with A or N. N. Correct. Why N? HOD. A आ रहा इसका प्रोनाउन HOD. Oh, madam. Correct. HOD. HOD. यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख रहा है. मैं उसको HOD बोल रहा हूँ क्या? नहीं. I'm saying he is an H. A का साउंड आ रहा है. What is A? Vowel. Yes or no? Vowel आए तो क्या करना है? मैं है क्या करना है? N लगाना है. Exactly. Correct. N लगाना है वहाँ पर. Same case. एक और मैं बता रहा हूँ. Listen to me carefully. For example, this is dash RTO slip. क्या आएगा भाई इधर? N. Correct. यहाँ पर भी N आएगा. Actually, R is not vowel. Miss Supriya, are you getting that words? Yes. R is not vowel. But उसको जो मैं pronounce कर रहा हूँ, see, वो खुद बोल रहा है NRTO slip. Why NRTO? Why? Because RTO. Do I say RTO? No, मैं उसको R नहीं बोल रहा हूँ. मैं उसको बोल रहा हूँ RTO. So RTO. If you see that the sound is what? R means what? Vowel sound, and for vowel sounds we're going to use their N, not A. Is that clear to all of you? Yes. चलो मैं आप लोग को एक थोड़ा सा चटका और ले लेते हैं, फिर आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुत ही इंडिया का बहुत ही रेप्यूटेड क्लास है, मैं वहाँ पे क्लास में स्टूडेंट बनकर गया था. एक्चुअली मैं बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ मैं, तो मैं सैचन वगैरह लेकर जाता तो उन लोगों को लगता है स्टूडेंट ही है. अभी की नहीं, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जब मेरे को इतनी दाढ़ी वगैरह भी नहीं था. तो मैं जब जैसे गया मैं क्लास के अंदर, एंड आई सेड दैट आई वांट टू टेक द एडमिशन एंड ऑल. तो मैंने वहाँ पे पूछा, सर, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर था जो इंग्लिश पढ़ाता था. मैंने उसको पूछा, सर दिस इज डैश यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगना चाहिए सर? ओ और एन? O. कसम से? Yes. कसम? महक, किसकी कसम? Yes, sir. O. सहेली की? सहेली की कसम. मरेंगी बेचारी. यस मिस सुप्रिया, कुणाची शपथ? लगना Why? लगना चाहिए क्योंकि उसका प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी मतलब YOU आ रहा ना, यूनिवर्सिटी. वेरी गुड गर्ल. इसको बोलते सबसे अच्छी बच्ची. यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है.
Exactly, she is absolutely right. See, हम लोग उसको यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं क्या? Like we said umbrella. Do we say umbrella? No. The sound is what? Sound is there. A sound is there. Umbrella. That's why we're going to say an umbrella, right? But here the sound is what? A university. 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 The sound is what? Y. महक समझ में आया अभी? अभी Y क्यों आया इधर? Yes, sir. Yes. तो Y आया. Y कौन है भाई? रमेश भाई Y कौन है? जय Y कौन है? Constant. करेक्ट, कॉन्सोनेंट है यार. कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाना है? A. Exactly, it's all of you. A university. However, the word is starting with a vowel, but we are going to put the A. Why? Because the sound matters a lot. Our rule is there. Whenever a word is starting with a consonant sound, we are going to put there A. And whenever a word is going to start with a vowel sound, then we are going to put there N. Simple फंडा है भाई. Sound बहुत ज़्यादा मैटर करता है. Sound मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर करता नहीं है. Is that clear to all of you? Yes. कि मैंने अभी Yes. पहले क्यों किया मालूम? अभी ये वाले क्योंकि ये आप लोग को आ सकता है. Now let me tell you one more thing. Even I myself is an engineer. मैं खुद भी एक engineer हूँ. And I went for a company. अभी से एक 3-4 साल पहले मैं एक कंपनी में गया था. I went for a company for an interview, and in that they asked me such kind of questions. It was an IT company, but at the second round, in the second round only, they asked me such questions. So they may ask you such questions in the interview as well. Aptitude test वगैरह होता है interview वगैरह में, कुछ पता है आपको बड़ी बड़ी companies में. So if you are going to a company, an MNC company, then they are going to ask you such kind of questions. अभी देखो मैंने बोला अभी, it is an MNC company. So it is an MNC, मतलब multinational company. So it is an MNC. यहाँ पे N क्यों आया अभी? E. E का होता है. Correct. E का आवाज आ रहा है वहाँ पर. He's right, absolutely right. N M N C ऐसा आवाज आ रहा है उधर, और वहाँ पे E का साउंड आ रहा है. और E कौन है महक? Vowel. Vowel. वॉवल आएगा तो क्या करना है मैम? N. करेक्ट, समझा? तो सिंपल सा फंडा है वहाँ पर, ज्यादा इसके लिए कुछ करना नहीं है. सो आपको ऐसे टाइप का एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. ऑलराइट, आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. शैल आई गो अहेड नाउ? Yes. Good one. So yesterday we have seen all these things. Now let me go ahead now. Next one, and the next heading is what? Grapheme in English. कितने लोगों को पता है grapheme क्या होता है? What is grapheme in English? कितने लोगों को पता है grapheme? What is grapheme? Don't know. Okay. ग्राफीम कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों को पता है? ग्राफीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कल खास सुप्रिया मैडम पूछ रही थी ग्राफीम के बारे में, ड्राफ्टिंग के बारे में मैडम पूछ रही थी. याद आ रहा है कुछ? सो ग्राफीम इज व्हाट? अ ग्राफीम, मैं आप लोग को उसका डेफिनेशन सुना देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट इज ग्राफीम. अ लिंग्विस्टिक यूनिट इन लैंग्वेज इन यूज व्हिच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड ग्राफीम. ऐसा यूनिट जो कि हम लोग लैंग्वेज इन यूज मींस व्हाट? इन रिटन इंग्लिश वी आर यूजिंग, दैट्स कॉल्ड ग्राफीम. ऐसा यूनिट इंग्लिश का जो कि रिटन इंग्लिश के अंदर यूज होता है, लिखने वाले इंग्लिश के अंदर यूज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफीम. सिंपल सी लैंग्वेज में इसको आप लोग बोल सकते हैं साइन, सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स, एब्रिविएशंस. ओके, ऑल दीज आर व्हाट? ग्राफीम. ये सब ग्राफीम है. ऑल दीज आर व्हाट? ग्राफीम. ये सब ग्राफीम है. दिख रहा है आप लोगों को? ये सब ग्राफीम है. जितना भी साइंस एंड सिंबल्स है इंग्लिश के अंदर, वो सब क्या है? ग्राफीम है. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कॉमा, फुल स्टॉप, परसेंट, एम्परसेंट, स्टार, एस्टेरिस्क, हैश, एट, एंड, माइनस, प्लस. अच्छा, ये सब अपने को जानने की जरूरत है क्या महक मैडम? जानने का जरूरत है कि इसको? Yes, sir. जरूरी है? हाँ. सच्ची में? यस रमेश भाई, जानना जरूरी है कि इसको? Yes. Mail and all used. Okay, my simple question is there. Miss Supriya, suppose if you are shouting Yes, sir. in mail, okay, how will you shout? If you want to shout in mail, how will you shout? अभी WhatsApp को तो जमाना है भाई. WhatsApp में तो कैसे emojis वगैरह सेंड करते हैं, बट अभी अपने को चिल्लाना है मेल के अंदर, तो कैसे चिल्लाएंगे? यस महक? मेल के अंदर चिल्ला कैसे सकते हैं सर?
वही तो कलाकारी ना, वही तो एकदम टैलेंट है अपना, चिल्लाना है अपने को मेल के अंदर। कैसे चिल्लाएंगे? अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अपने बॉस ने अपने को, अभी अपने क्या किया, अभी जैसे कि जय है, जय का हो गया घर पे झगड़ा। कहाँ पे? घर पे झगड़ा हो गया जय का। जय की वाइफ ने जय को मारा और घर से हकल दिया। जय भाई मार पीट खा के वहां से निकल गए। जय 4 दिन से काम पे नहीं गया है, ना घर पे आया है। तभी जय के बॉस ने उसको, जय को मेल किया, तो जय का बॉस चिल्ला रहा है ना, तो मैं मेल में चिल्लाएगा कैसा? क्योंकि अभी फोन तो बंद है। मेल किया, मेल में चिल्लाएंगे कैसा? यस रमेश भाई, एनी आइडिया? लेटर इसे ऐसे? लिख के ही चिल्लाएंगे। अच्छा ऐसे चिल्लाएंगे आ? नहीं। कैसे चिल्लाएंगे? बोल्ड में या रेड में मार्क कर। ओ, बोल्ड में या रेड में? वेरी नाइस, चलो कुछ तो आइडिया लगाया भाई, वेरी गुड। और क्या बोलेंगे? यस मिस सुप्रिया, व्हाट इज योर आइडिया, एनी थॉट प्रोसेस कैसे चिल्लाने का? कैसे बोलेंगे उसे? गार्ड सर भाग। जो भी यस, सर जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो डबल नोट और कॉमा में रखेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाइमा मैडम क्या है चिल्लाने का? शाइमा मैडम चिल्लाने का कैसा? अभी सब तो बोल दिए, वही डबल इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा उसके घर वीर पे नहीं घुसेंगे क्या? नहीं। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ चिल्लाने का कैसे है ना। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, जय को मार के घर से हकाल दी वाइफ ने, करेक्ट? अभी जय को मार के हकाल दिए घर से, तो अभी जय बेचारा 4 दिन से घर पे भी नहीं गया है और काम पे भी नहीं गया है। पर जय को, जब जय ने मोबाइल ऑन किया, तो जय को 2 मैसेजेस मिले। जय को मिले क्या? 2 मैसेजेस, एंड बोथ द मैसेजेस आर द सेम। दोनों भी मैसेजेस सेम है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वहां पे ये वाला डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वेर आर यू, पहला मैसेज मिला जय को ये वाला, वेर आर यू। सेकेंड वाला मैसेज मिला जय को ये वाला, वेर आर यू। बट दोनों में डिफरेंस ये है, फर्स्ट वाला मैसेज वेर आर यू विद क्वेश्चन मार्क, सेकेंड वाला वेर आर यू विद एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ फर्क है कि दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस? यस यस सर, है ना। व्हाट इज दैट? फर्स्ट सेंटेंस का क्वेश्चन पूछ रहे और फर्स्ट वाले में वो क्वेश्चन पूछ रहा है और हाँ, सेकंड second- में वो एकदम वाइट। यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, क्यों है ऐसा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, दोनों ने सेम मैसेज किया है जय को। क्या मैसेज किया है? वेर आर यू। बॉस ने मैसेज किया जय वेर आर यू, कहाँ पे आप काम पे नहीं आए? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, समवन इज आस्किंग हिम अ सिंपल क्वेश्चन, जय वेर आर यू, जय कहाँ हैं आप? एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन इज व्हाट? शी इज शाउटिंग, द वाइफ इज शाउटिंग, जय वेर द हेल आर यू, प्लीज कम होम अदरवाइज आई विल बी कमिंग देयर। घर पे आओ अदरवाइज आपका एटीएम बेच के दो, बाहर मरो, मालूम नहीं हमको, बट एटीएम चाहिए। So this is what she is shouting. Because of this exclamation mark, it has been considered that she is shouting. समझ में आया आप लोगों को? समझा? तो अगर चिल्लाने का अगर होगा लेटर के अंदर, तो चिल्लाने का कैसा? वहां पे इमोजी बना के देने का नहीं, एड़े के ऐसा, वहां पे आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना पड़ेगा। गेटिंग इट? आप लोगों ने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखा है कभी? अगर आप लोग को अगर अच्छे जॉब्स चाहिए, अगर आप लोगों को अच्छी कंपनी के साथ में टाई अप करना है, लिंक्डइन के ऊपर जाके एक नंबर का बेस्ट आप लोगों का आईडी बनाओ। जिसने भी अपना लिंक्डइन एक नंबर का बनाया, समझो वह बंदा जीत गया। जाके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को एक नंबर बनाओ। अगर आप लोग को जॉब अच्छा चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करो, आपको बेस्ट जॉब मिलेगा। रिमेंबर दिस, आपका जितना पावरफुल लिंक्डइन प्रोफाइल रहेगा, उतना अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगे। मेरे पास में लोग इतने सारे आते हैं टाई अप करने के लिए, जॉब के लिए लिंक्डइन पे मेरे, बट मुझे जॉब वगैरह के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं। इफ़ यू सी माई लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखा रहा हूँ खोल कर डायरेक्टली। सो हाउ विल यू बिल्ड अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल? उसके अंदर का पिक्चर, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है आपने, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सी दिस इज व्हाट माई लिंक्डइन प्रोफाइल, एबल टू सी? अंसारी दीसी, इंडियाज इंग्लिश लिंक ग्रोथ हैकर। सो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए दैट पीपल शुड कम टू यू।
दिख रहा है? Each and everything should be there. See, अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको पूरा इसके अंदर डिटेल मिलेगा. सो लिंक्डइन शुड बी अमेजिंग. तो उसके अंदर आप लोग लिख के आ रहे बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो इफ यू वांट टू शाउट, यू आर गोइंग टू पुट देयर एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोग वहां पर लगा देंगे. सेम केस देखो यहाँ पर, वेयर आर यू, इट इज व्हाट बॉस का है, सिंपल क्वेश्चन है. एंड वेयर आर यू, वाइफ, शी इज शाउटिंग. Getting it? So these are the sentences, they are changing their meanings. Why? Because of the exclamation mark, question mark and all. All right, any doubts? तो ये जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है. अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों मैटर करता है. नाउ लेट मी टेल यू विद द प्रूफ. इन 1961 इन नासा, सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी हूँ, प्रूफ के साथ में बोल रहा हूँ, आप लोग घर पर जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं मिला तो मेरी गचंडी पकड़ लेना. इन 1961 इन नासा, ये मैं आपको इसके लिए पढ़ा रहा हूँ ग्राफीम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. In 1961 in NASA, there was a scientist and he committed a mistake. Committed a mistake in what? He committed a mistake between the hyphen and minus. Hyphen और minus में थोड़ा सा फर्क है. Hyphen और minus में थोड़ा फर्क है. Hyphen थोड़ा छोटा होता है, minus थोड़ा बड़ा होता है. ये minus है और ये वाला hyphen है. Hyphen कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज करते हैं अपन. पता है ना? For example, mother in law. 3 words are combining together and making one word. Mother in law. वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम लोग हाइफन यूज करते हैं, देखा रहेगा आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ. और माइनस प्लस तो आपको पता ही है, माइनस अपन मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं. वो साइंटिस्ट ने गलती किया था कोडिंग के अंदर, वहां पे उसने क्या किया, माइनस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे हाइफन, हाइफन की जगह पे माइनस किया. उसको उन लोगों ने शूट कर दिया था. क्यों? क्योंकि वो जब स्पेस शटल जो था वो ब्लास्ट हो गया था, बिलियंस ऑफ रुपीज का वो टाइम पे नुकसान हुआ था उन लोगों का. किसका? नासा का, अमेरिका. उसने बोला भाई अभी इतना बड़ा नुकसान किया, भर के कौन देगा? उन लोगों ने बोला भाई साइंटिस्ट लोग को सब चलो आओ, लाइन में आओ. सब साइंटिस्ट लोग को खड़ा किया. वो जो साइंटिस्ट जिसने गलती किया था उसको उड़ा दिया. अब उसको उड़ाया तो 4 लोग शाने हो जाते हैं ना, अरे इसको गोली मारा, मेरे को भी गोली मार सकते हैं इन लोग, गलती किया तो. एक गलती जो कि अपने को बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है. नाउ लेट मी टेल यू, ये आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है. आप लोग को मालूम है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जय का बर्थडे था, जय का बर्थडे था तो जय ने क्या किया, जय ने एमजी रोड पर से जा रहा था. जय जाते थे, जय को क्या मिला, एक शोरूम पे मिला 100 रुपीज में 5 पैंट्स. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 100 रुपए मध्ये 5 पैंट्स. वाह, व्हाट अ सेल. 100 रुपए थे जय के पास में. जय ने बोला आज होने दो पैंट्स पार्टी. तो जय ने क्या किया, महक, रमीज, शाइमा, अंसार, सुप्रिया, सबको बुला के लिए, चलो मैं आज आप लोग को पैंट्स पार्टी देने वाला हूँ, चलो. जैसे शॉप में गया जय, जय बोला ये लो 100 रुपए, 5 पैंट्स दो मुझे. तो लोग ने बोले निकलो बाहर. क्यों? सर रुको जरा, उधर क्या है, एक स्टार मारा है. तो स्टार का क्या? सर बैनर के नीचे देखो कुछ लिखा है. क्या लिखा है? कंडीशन. कंडीशन. करेक्ट. क्या लिखा है? कंडीशन सप्लाई. मतलब क्या होता है? कंडीशन कंडीशन अप्लाई है सर. उसके पीछे शर्त लागू है. क्या शर्त है? पहले शर्त क्या है सर? पहले 10,000 का शॉपिंग करो, उसके बाद में 100 रुपए में 5 पैंट्स मिलेंगे. यार गलत बात है यार आप लोग का. यार आप लोगों ने लिखे ना 100 रुपए में 5 पैंट्स, एक्चुअली कंडीशन है. दिस स्टार मीन्स व्हाट? टर्म्स एंड कंडीशन. टर्म्स एंड कंडीशन. तो जहां पे आप लोगों ने देखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन, वहां पे स्टार लगाते हैं. So this star is really very important. Why? It is used for the term and condition. Same case. अभी for example, Miss महक, star 121. किसको कॉल लगता है? भाई को कॉल लगता क्या? नहीं, सहेली को कॉल लगता? क्या होता फिर इधर? रिचार्ज पता चलता है. करेक्ट. बैलेंस मालूम पड़ता है ना आप लोगों का, रिचार्ज का बैलेंस कितना है उसको मालूम है. टर्म्स एंड कंडीशन, स्टार 121 हैश, बॉयफ्रेंड को फोन नहीं लगाने का, बैलेंस बताने का. गेटिंग इट? सिंपल. मीन्स व्हाट? उसको मालूम है star and hash we are using for terms and conditions, at we are using for mail IDs and all. Plus minus आपको तो सबको पता ही है. So every punctuation mark contains some kind of meaning. Is that clear to all of you? So grapheme is what? A linguistic unit which has some meaning in language in use. Means what? ऐसा linguistic unit जिसका कुछ ना कुछ meaning होता है written English के अंदर. Alright, उसको बोलते नहीं, खाली हम लोग लिखते हैं. So like that, for example, if you want to shout, you can just put there exclamation mark, and if you want to ask simple question, you can put there question mark as well. तो ऐसे बहुत सारे उसकी चीजें हैं. Alright, now ये मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिया था, full stop and all. Forget this one.
नाउ अभी फॉर एग्जांपल अभी आप लोग बाकी बाहर की क्लासेस वगैरह में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं ना, झटकन पटकन इंग्लिश शिका, 5 दिवसात 10 दिवसात इंग्लिश शिका. झूठ बात करता है वो. क्यों? नीचे उधर स्टार मार के रखता है. कंडीशन अप्लाई. क्या कंडीशन है? नेवर बी एब्सेंट, डू ऑल द असाइनमेंट्स, पे अटेंशन इन क्लास. तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने देखा रहेगा ऐसे बैनर लगा हुआ रहता है, इंग्लिश नाही आली तर पैसे परत. लोग क्या करते हैं? अभी जय अपना है कि नहीं, जय ने क्या किया, 5,000 रुपये भरा उधर. 5,000 रुपये भरने के बाद में जय ने प्लान बनाया, मैं जाऊंगा उन लोग को बोलूंगा मला इंग्लिश से सुनाया ली, मेरे को इंग्लिश नहीं आई है, पैसे दो मेरे वापस. तो उन्होंने क्या किया, जय को पहले तो ठंडा पानी पिलाया. जय बाबा बैठो. पिला के उनको क्या बोला, नीचे देखो क्या लिखा है. क्या लिखा है उधर? इट इज व्हाट कंडीशन अप्लाई. सर क्या कंडीशन है? नेवर बी एब्सेंट. तो जय ने क्या बोला, मैं तो कभी एब्सेंट था ही नहीं, पैसे दो. बोले सर रुको. सेकंड कंडीशन, डू ऑल द असाइनमेंट्स. मैंने असाइनमेंट किया ना, फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आई. सर थर्ड कंडीशन है, प्लीज पे अटेंशन इन क्लास. आपका सर ध्यान नहीं था क्लास में, आपका ध्यान आपकी गर्लफ्रेंड के पास था. अब इसका प्रूफ दे सकते हैं आप लोग? प्रूफ दे सकते हैं? नो. सो अल्टीमेटली जय फंस गया उधर. अब जय फंस गया तो बेचारा जय रोते रोते घर को आया, क्या यार मेरे 5,000 रुपये लूट लिए यार. वाई? दिस इज, इसको बोलते हैं पागल बनाने का business. ऐसा बाहर वाले करते हैं. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ग्राफीम. एनी डाउट्स टू एनीवन? ग्राफीम, एनी क्वेश्चंस? No. So grapheme is very simple. That the consequence and the terms and conditions of grapheme is what? If you want to know grapheme, you can put that into your language in use and all. Next word is what? A word. What is a word in English? Yes, what is a word? Next heading is what? Word. What is a word? Word किसको बोलेंगे हम लोग? Collection of letters. Correct. Collection of letters. Correct. A collection of letters is word. Correct. For example, Ramiz, is this a word? Collection of letters it is. K is a letter, T is a letter, P is a letter, Z is a letter. It is a collection of words, letters. Is it a word? No. Then what is a word? Meaningful. It should give any meaning. He's right. What is a word exactly? A group of letters which has some meaning, that is a word. A collection of letters which has some meaning. जिसका कुछ meaning रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Word. Is that clear to all of you? A group of letters which has some meaning is a word. For example, KTPZ. Is this a word? No. PQR. Is this a word? No. This is a word. P is a letter, E is a letter, N is a letter. It is a collection of word. It is a group of word. It has meaning. Yes or no? इसका meaning है pen. Pen मतलब Yes. बम्बू. Pen क्या होता है? अरे पेन नहीं मालूम आप लोगों को? Big house. पेन. अरे क्या आप लोग? अरे पेन लिखने वाला पेन यार. Okay, so pen is what? Sir. Pen is a word, right? So pen is a word. Why? It's a group of letters. For example, पर Can't क्लियर hear you. साउंड नहीं आ रहा है. सर आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा आप लोगों को? बाहर की आवाज आ रही है सर. Hello? Yeah, you're clear. या. यस. या. Is it fine? यस. Actually, my internet. यस. So, what is a word? A word is a group of letters which has some meaning. For example, board, car, pot, man, lamb, bench. All these are what words? Bench. If you see bench, B is a letter, E is a letter, N is a letter, C is a letter, H is a letter. A group of letters which has some meaning is a word. Is that clear to all of you? So, what is a word? A word is a group Yes. of letters which has some meaning. Any doubts? No. नो. Yes, sir. Please tell me about the pen. Pardon? What is the meaning of pen? Pen. Pen के दो meaning. Pen मतलब Yes. लिखने वाला pen. Correct. And what is another meaning of pen? Big No. house. House.
Another meaning of pen is what? Pig house. आप लोग को शायद पहली बार पता चलेगा, आप लोग डिक्शनरी में चेक कर सकते हो उसको. मिस सुप्रिया सोच रही अरे हे काय झालं नवीन, पेनचा अर्थ. नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहे हो आवाज, वापस से बताओ ना. आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा आज. कट हो रही हो बीच में. ओके ओके ओके. See, pen, second meaning of pen, a small enclosure in which pigs are kept. Okay, pigs or from the other animals are kept. So pig का जो घर होता है उसको हम लोग pen बोल सकते हैं. Okay, so pen के दो मीनिंग है, एक तो अपना पेन लिखने वाला पेन, and second meaning of pen, pig house. All right, so what is a word in English? A word is a group of letters which has some meaning. Group of letters. Correct. Which has some meaning. For example, cardboard, pen. Can you please give me five words? New words चाहिए मुझे सबके पास से. Give me 5 words. Miss Supriya, please give me 5 words. Any 5 words. For example, बॉटल, चेयर, कप, नोटबुक, good. Mehak, चार्जर, good. सोफा, लैपटॉप, टेबल, पिलो, विंडो. Good. Ramesh, Ink, sketch, laptop, cooler, chair. yes. Shaima, बेडशीट, कपबोर्ड, टीवी, सोफा, चेयर, बॉटल, बैग. good. Jay, Plant, cable, sky, turbine, jet, fuel. so what is a word? A word is a group of letters which has some meaning. Okay. Next one. एक interesting question है. O and A. Are these words? O and A. O, A. Are these words? Express. Correct. These are what? Expressions. These are what? Explanation. तो वो words है क्या? O and A words है क्या? Are these words? No. No. Okay. O का मतलब क्या होता है? Surprised. Very nice. A का मतलब क्या होता है? Pain. Nice. Beautiful. Amazing. Actually, O and A are the expressions. अगर हम लोग किसी को पूछे A का मतलब क्या है? A. अब A का अपन कुछ मीनिंग तो निकलेगा नहीं वैसे नॉर्मली, बट O and A are the expressions. O and A are the expressions and they have some meaning. For example, suppose for example, अगर मैं किसी को बोलूंगा PQR तो सामने वाला क्या करेगा? देखिएगा वो डोके पढ़ ले जरा थोड़ा सा. कोई बोलेगा कि हम लोगों को कुछ आंसर देगा क्या? अगर मैं किसी को बोलूंगा KTPZ, सामने वाला देखेगा क्या प्रॉब्लम है इसका? आंसर देगा कि हम लोगों को नहीं देगा. नहीं. बट अगर मैं किसी को बोलूंगा तो सामने वाला पूछेगा अरे क्या हुआ, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ओ माय गॉड ओ, तो आप लोग पूछेंगे ना क्या हुआ, क्योंकि वो ओ का आ का मीनिंग है. अगर मैं किसी को बोलूंगा ABC, सामने वाले से देखेगा बोलेगा तो क्या ABC, तो क्या मीनिंग है कि वो ABC का कुछ? No. तो अल्टीमेटली वो ABC का मीनिंग नहीं है, बट O and A का मीनिंग है. व्हाई? बिकॉज दीज आर व्हाट? एक्सप्रेशंस. एनी डाउट्स? No. हो सर. No. Good one. So this is it for today, and tomorrow we are going to start a new topic which is really very very important topic. कल हम लोग देखने वाले हैं. All right, and remember, याद आपको जाना मत, आपको आपकी माँ की कसम. 2 मिनट रुकिए. सर आपने जो बोले थे ना उस दिन के हाउ टू आइडेंटिफाई गुड पर्सन, उसका कोई आंसर होता है क्या आपने? पता उसका? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, मुझे जानना है. रमीज, आंसर प्लीज. नहीं मिला मुझे भी. वही मिले जो मैंने ढूंढे थे और उस दिन बताया. हैबिट्स वो सब, या फिर लॉन्ग टाइम के बाद यू कैन आइडेंटिफाई. मतलब मीन्स व्हाट? इफ यू वांट टू नो अ गर्ल यू विल मैरी हर. 20 साल के बाद में मालूम पड़ेगा तो कैसी है मेरे को. मिस सुप्रिया, देयर इज अ क्वेश्चन.
मैंने इन लोग को एक क्वेश्चन दिया था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, हाउ टू जज अ पर्सन। किसी इंसान को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे आप? वो अच्छा है क्या बुरा है, साथ ही साथ निभाना, साथ निभाएगा कि छोड़ के भागेगा, कैसे पहचानेंगे? बिहेवियर से उसके। बिहेवियर से कैसे पहचान सकते हैं मैडम आप उसको? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो आप लोग कितने अच्छे बिहेव करते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, अरे जॉब देते हो का ना मला, कदाओ मी निघून. मैनर्स नहीं, मैनर्स। मैनर्स, कुछ लोग के अंदर मैनर्स होते हैं बट जरूरी नहीं वो अच्छे लोग रहेंगे. कैसे पहचानेंगे उसको? कुछ लोग सामने आते हैं आपके बहुत अच्छे से रहते हैं, कम्युनिकेट करके घर में आएंगे तो मालूम पड़ता है, अगर आई उसके साथ अगर कम्युनिकेट जीवन दे. यस, उसके साथ कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेशन के अंदर तो सभी लोग अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, यहाँ पे मदिहा मैडम है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, पर पीछे बहुत गंदी गंदी गाली देती है. वो क्या करेंगे फिर आप? सामने तो सभी बहुत अच्छी बात करते हैं. अभी महक देखो, महक बहुत अच्छी बात करती है, पर पीछे बहुत गंदी गंदी गाली देती है सहेली को. क्या करेंगे? रमीज, नहीं सर, अपने पास ऐसा नहीं कर। स्टॉक है ना अपने पास 2022 का गाड़ी का? यस, सामने सभी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, पीछे कैसी बात कर रहा हूँ आपको पता है क्या? कम्युनिकेशन से भी नहीं पता चलता है, बिहेवियर से भी नहीं पता चलता है, कैसे पता चलेगा? बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है. मैंने थोड़ा मजाक में लेकर बोला हूँ क्योंकि ताकि आप लोग को इंटरेस्ट आए, इसके लिए मैंने थोड़ा मजाक में लिया हूँ मैंने, वरना बहुत ही ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है. सपोज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं देखो कितनी अच्छी सी बात कर रहा हूँ भाई बॉडी लैंग्वेज, पर घर में आने के बाद में आगे चिके आड़े टेढ़े उंगली विंगली बता के कैसे कैसे झगड़े करते मालूम है ना. हम लोग कैसे पहचानेंगे किसी को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कल इसका आंसर चाहिए. ओके, नहीं मिला तो मैं तो देने वाला हूँ. अब प्लीज ये आके मत बोलना मेरा अब्बा बोले तूने उधर पैसे भरा ना, उनसे तो आंसर ले. ये आके बोलना नहीं, मालूम है आंसर मैं देने वाला हूँ, बट आप भी ट्राई कीजिए प्लीज. ओके, मैंने आप लोग को टास्क क्यों दिया? ताकि आप लोग का पता चलना चाहिए, आप लोग ने कुछ लेकर आना चाहिए ना, अरे हाँ देखो मुझे ये आंसर मिला है, मैं इससे हो सकता है क्या, उससे हो सकता है. कल मैं इसका आपको आंसर देने वाला हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन. ओके, जादू देखना है क्या आप लोगों को? यस. ठीक है, तो फिर एक काम करना, अपना अपना सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर के ऊपर मार के मुझे सेंड कर देना. ठीक है, आज व्हाट्सएप पे मुझे अपना अपना सिग्नेचर करके सेंड कर देना, कल आप लोगों को जादू मिल जाएगा. ओके, अभी देखो इसके अंदर से मैं एक भी बंदे को मिला नहीं हूँ, मैं फेस टू फेस में आप लोगों को किसी को नहीं मिला हूँ उसके अंदर से. सुप्रिया मैडम को मैं कभी मिला नहीं हूँ, महक मैडम को भी मैं कभी मिला नहीं हूँ, जय तो आउट ऑफ द स्टेट ही है, उनको भी कभी मिला नहीं हूँ मैं. आउट ऑफ स्टेट सर. मैं रमीश भाई को भी कभी मिला नहीं हूँ, शाइना मैडम को भी मैं कभी मिला नहीं हूँ. मैं आप लोगों को कभी किसी को फेस टू फेस मिला हूँ क्या? नो. बट मैं आपके बारे में नहीं. बहुत कुछ बता सकता हूँ. मुझे आप लोग का सिग्नेचर सेंड कर देना आप लोग व्हाट्सएप पे. ओके, व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना, सेंड कर देना. कल अंतर्यामी बाबा अंसार आपको आपके बारे में बताएंगे, उसका ही एक प्रोसेस है, वो मैं आपको कल बताऊंगा डिटेल में, कौन सी चीज को कैसे क्या करना है. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट. इट्स टू लेट बाय द वे, सॉरी.
I'll show you that tomorrow. Okay? वो भी मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा. Okay? No problem at all for today. By the way, आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? Any question? No. No, sir. आज हम लोग वर्ड, कल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एब्सेंट रहेगा नहीं बनता. ओके, कल आपको मैं बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई अ पर्सन. अपार्ट फ्रॉम दिस वन, जो लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करूंगा मैं. ओके, if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime and send me your signature on a white paper on my WhatsApp. मेरे WhatsApp पे आप लोग अपना अपना सिग्नेचर सेंड कर दो. आपको आपके बारे में बता सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत. ओके, see you tomorrow on time, 7:30. All right, any doubts to anyone? No, sir. Sayonara. No, sir. Okay, we'll see you tomorrow on time. And if you have any friends, any girlfriends, boyfriends, आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, if they want to join classes, you can tell them they can join happily. All right, we'll see you tomorrow. Cheerio. Cheerio. See you. Quit the meeting.